Hello everyone, this is Aruna Gondalia from Gajera Vidya Bhavan. Welcome you all to our today's talk show on National Girl Child Day. Today we have a very special guest in our studio, Dr. Ami Yagnik ma'am. Hello everyone. My name is Manya Viva. And my name is Kikani Vishwa. We both are from Sri Edje Gajera English Medium School, Katargam. We are here to celebrate National Girl Child Day and we have ma'am with us to discuss some questions. Ma'am, I have a question. Why do we celebrate National Girl Child Day? First of all, let me congratulate you because you both are the people for whom we are celebrating this day. Okay, so the National Girl Child Day is specially celebrated for the teenage group, specifically girls of teenage group, because it is believed that they are the future of country. And if we empower them in the way that they should be empowered, then the nation, or our future is much brighter. Okay, so we celebrate this day basically to empower the girls. And ma'am, what are the importance of girl child in our India? See, not only in India, in the whole world, the girls are as important as boys. Okay, but that is something which is desired or which is ideal. But in the true sense, if we look at the lives of girls around us, then that is not so. Okay, in many ways, girls are not given their entitlement in terms of many issues like education, nutrition, then our freedom of expression, freedom to move the way we want to. Then there are questions like when to marry, whom to marry, all those things, how you want to, or whether you want to marry or not. Okay. So all these things are something which as a human being we should be allowed to do by ourselves. Okay. But do you think all these choices are given to us? No, ma'am. Right? So this day is just to emphasize that all the girls have as much right as boys for all these choices that one has in their lives. Okay, so that is the importance. See, if you know about the ratio, sex ratio, do you have any idea about the sex ratio? No. Do you know? Like at birth, how many boys and how many girls are born? You know, that is known as the sex ratio. In our country, the sex ratio is in favor of boys. Okay, so for if we talk about Gujarat, then for every 1,000 boys that are given birth, only 856 or so, roughly, girls are born. Okay, so there is a gap. That gap is not created by nature. Okay, that gap is created by human beings. So a lot of girls are sort of killed in the womb. Okay, so that is the first. So right from the womb to tomb, it is said that right from the womb of a mother to their death, at whatever age that they die, in the lifespan of a woman or a girl, she is being discriminated at each and every step of her life. Okay, and this day is to remind us that we all need to work together for this and to change what is not right. Okay, so that is the importance of this day. Ma'am, आपने कहा that girl child is very important in whole earth. Yes. But मैम जब किसी के हाउस में बेबी गर्ल का जन्म होता है तो उसका वेलकम बेबी बॉय की तरह क्यों नहीं होता? That is what, it is known as gendering. दो चीज़ें हमें नहीं बताया जाता है. तो जैसे हमें अगर आप बताएं कि आप क्या हो, आपकी मतलब जाति क्या है, तो हम बोलेंगे गर्ल या बॉय, राइट? तो दैट इज समथिंग विच नेचर हैज गिवन अस, राइट? लेकिन हम लड़का या लड़की तरह से हम जन्म लेते हैं, पर फिर हम किस तरह से सोसाइटी में हम व्यवहार करते हैं,
हम कैसे बोलते उठते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, हम कैसे सपने देखते हैं, हम क्या करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें डिफरेंस है Yes, Yes. ma'am. है बराबर। Yes. Yes. कुदरत ने तो जो भी क्षमताएं दी है, ठीक है, वो दोनों में सेम दी है, ठीक बराबर। तो मैं जो कुछ भी मेरे में क्षमता है, तो इसको मैं जितना भी बढ़ाना चाहूँ वो मैं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है ना। पर समाज को वो नहीं चाहिए। समाज को ऐसा चाहिए कि लड़की है तो उसको इतना ही करना है, ठीक है। तो आप कैसा पहनोगे, आप कैसा करोगे, आप बड़े होके क्या बनोगे, आप कब कहाँ तक पढ़ोगे, आप कब शादी करोगे, ठीक है। शादी करके आप काम करोगे, कमाओगे या नहीं कमाओगे, आप कितने बच्चे पैदा करोगे, ठीक है, ये सब कौन तय करता है? Society. सोसाइटी तय करती है, आप नहीं तय करते हो। और ऐसे मोल्ड में डालने के लिए बचपन से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर सोचो, हाँ, तो छोटे थे जब, तो आपको कौन से खिलौने दिए जाते थे? Dolls. ओके, लड़कों को दिया जाता था? No. क्यों? लड़के डॉल से नहीं खेल सकते? खेल सकते खेल हैं कि सकते नहीं? हैं। पर उनको डॉल नहीं दिया गया, ठीक है। उन्हें क्या दिया कार गया? दिया। उन्हें कार दिया गया, ठीक है। कार। तो बचपन से वो सपने देखते हैं कि हाँ मैं तो कार को चलाऊंगा। और लड़की क्या सोचती है? मैं डॉल की तरह डॉल की बनना तरह। चाहती हाँ हूँ। मैं डॉल की तरह सजूंगी, बैठूंगी, ठीक है। तो उसको पहले से ऐसा समझा दिया जाता है, खिलौने के मतलब जब से आप बहुत छोटे होते हैं, तो हम जो जो एक्सपीरियंसेस में से पसार होते हैं, ठीक है, हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम वैसे बनते हैं, है ना। हमने अगर कभी कार के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर मेरे घर में कार आएगी तो भी मुझे ऐसा मन नहीं होगा कि मैं चलाऊं, मैं पीछे बैठने में खुश रहूंगी, है ना। Yes. और मेरा भाई होगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो चलाना है ना। तो ये मोल्डिंग कहा जाता है। हमें बचपन से कैसा व्यवहार हमारे से इच्छित है, हमें कैसा बनना है, उस तरह से हमारे पेरेंट्स, हमारे पूरा समाज, हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर में दादा दादी होते हैं, या स्कूल में पढ़ते हैं, या हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हर जगह में अगर आप उसको माइन्यूटली देखिए तो कहीं ना कहीं आपको ये डिफरेंसेस नज़र में आएंगे, ठीक है। वो उसको बोलते हैं जेंडर लेंस। अगर आप देखना शुरू करोगे ना, तो आपको वो सब जगह दिखेगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब लड़का पैदा होता है ना, तो उसको मतलब पहने बांटे जाते हैं, ठीक है। और लड़की, हाँ सेलिब्रेशन होता है, बहुत खुश होते हैं लोग। और लड़की आई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि हाँ लक्ष्मी आई, चलो दूसरी बार लड़का आएगा, है ना। तो लोग जैसे मन मनाते हैं, इतना खुल के खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि लड़की की जिंदगी पूरी इस तरह से लोगों ने या समाज ने बनाई है। समझ में आया? Yes. और फिर ऐसा अगर आप आगे देखे ना चाहे, चलो तुम बड़ा होके क्या बनना चाहती हो? Doctor. डॉक्टर। तुम? डॉक्टर। डॉक्टर। क्यों और कुछ नहीं? क्यों डॉक्टर बनना है तुम्हें? पर्सन्स की लाइफ सेव करने के लिए। और कोई है डॉक्टर घर में? No. नो। तुम्हारे कुछ एक्सपीरियंस है डॉक्टर की लाइफ का? माय मॉम इज लैब टेक्नीशियन। ओके ओके। तो तुम्हें अगर बोले कि चलो आपके लिए और चॉइसेस भी, आपने कभी सोचा कुछ और बनने का? किसी ने आपको बोला कि डॉक्टर बनना अच्छा है? यस मैम, माय मॉम सेड। मॉम से। तुम्हें? No. अच्छा, और तुम्हारे और कौन है घर में? My dad, mom, and me. ओके, यू डोंट हैव एनी अदर सिबलिंग? No. ओके, तुम्हें? माय मॉम, डैड, मॉम, माय मॉम, डैड, मी एंड माय सिस्टर। ओके ओके। सो दोनों में से किसी को घर में लड़का नहीं है, तो वो समझाना मुश्किल है, ठीक है। पर मतलब जो हम कैरियर की चॉइस भी करते हैं ना, ये मतलब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे या ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है ना, उसका थीम होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो हर साल अलग अलग थीम होता है। शायद इस साल में वो साइंस एजुकेशन के बारे में है। तो जैसे मानो एक डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें लड़कियों को जैसे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। पर उसमें भी डॉक्टरी में भी कुछ कुछ ब्रांच में ही, यस। ठीक है। आप मानो डॉक्टर हो
तो जैसे मानो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जनरल सर्जन हूँ, ओके। तो जनरल सर्जरी बहुत सारी लड़कियां नहीं होती हैं, ओके। तो जनरल सर्जन का मैंने चूज किया तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, यस मैम। ठीक है। कैसी दिक्कतें? मानो लोग ऐसा मानते हैं कि अभी सर्जरी कर रही है तो वो तो कितनी आज़ाद होगी, ओके। अभी एक प्रोफेशन और आपके स्वभाव से कुछ कनेक्शन है क्या? नो मैम। नो नहीं, पर फिर भी ऐसा माना जाता है। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई पता है? कोई लड़का मेरे से शादी करने के लिए ही तैयार नहीं था, बराबर। या अगर आप हमारे यहाँ मानो अरेंज मैरिज की सिस्टम होती है, लड़का देखने आता है तो हमें ऐसा कहेगा कि मैं सर्जन हूँ, तुम एनेस्थेसिया कर लेना, या मैं वो हूँ, तुम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांच, मतलब लड़कियों की ब्रांच हमेशा बड़ी मानी जाती है, और लड़की जो डॉक्टर भी होती है अगर, तो उसको ऐसी ब्रांच पसंद करने के लिए कहा जाता है कि जिससे उसकी गृहस्थी चलाने में उसे कोई मुश्किल ही नहीं आए। समझ में आया? मानो घर का रसोई पकाना, बच्चों को संभालना, वो वगैरह वगैरह, वो डॉक्टर के लिए नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो, पर उसको मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की ऐसी कैरियर पसंद करे कि ताकि वो सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आए। क्या ये सही है? नो बराबर। मानो चलो सोच लो कि मैं कहीं सीईओ हूँ बड़ी कंपनी की, मुझे बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है, तो अगर मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम होता है? नो और अगर लड़की को ट्रैवल करना पड़ता है तो, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम्स है ना, क्या प्रॉब्लम होंगे? उससे बाहर नहीं जाने देते अकेले। अकेले एक तो बाहर नहीं जाते, फिर और क्या होता है? आप जाती हो घर के बाहर अकेले यस। स्कूल के सिवा? हाँ, मतलब छोटा मोटा लेने के लिए, बाकी Yes. कहीं दूर जाना हो, मतलब ट्रैवल करना हो, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, नो नो जाती हो, नो। राइट? हाँ, हम्म। जाना पसंद करोगी? यस यस। कभी पूछा पेरेंट्स को क्या हमें चलो ये करना है, जाना है? मैं एक बार गई थी कहाँ? पिकनिक डांग ओके, ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग। ओके, ग्रुप के साथ, तो बढ़िया है। ऐसे भी जाना तो मिला ना, तो जा सकते हैं ना, यस। कोई तकलीफ आई? नो मैम। हाँ, तो फिर दूसरी बार जाने का मन नहीं हुआ? हुआ। तो नेक्स्ट टाइम पिकनिक है। हाँ, क्यों नहीं गई फिर वापस? स्कूल की तरफ से अगर हो तो जाने देते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, पर मैं ऐसे नहीं जाने देते। ऐसे नहीं जाने, ठीक है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शन टू मोबिलिटी है, मतलब हमारे आने जाने पे पाबंदी है, ठीक है। मानो तुम्हारे घर में, इवन तुम्हारे पेरेंट्स में भी तुम देखोगे, अगर जैसे पापा है तो वो कहीं भी जाते हैं, जाते हैं ना, Yes. मम्मी कहाँ कहाँ जाती है? अकेली अकेली, हाँ, मतलब Job पे। रिश्तेदारों के यहाँ। और Yes. कहाँ जाती है? जॉब पे। जॉब पे जाती है, ओके, और कहाँ? पीटीएम ठीक है ना। तो पीटीएम भी जैसे वो मम्मी का डिपार्टमेंट है ना। पापा कितनी बार आते हैं? नो ओके। तो ऐसा जो हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, घर की चीज़ों में भी वो एक कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया है कि मानो लड़की है तो उसको घर संभालना है, लड़का है तो उसको कमाना है। तो इसलिए बचपन से तुम जो कहते थे ना कि उसको सेलिब्रेट किस तरह से करते हैं, या आते हैं तो अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि लड़के को इसलिए इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो बड़ा होके घर के बाहर का काम करे, कमाए, समाज में इज्जत कमाए, ऐसा ऐसा। और लड़की को इस तरह से उसको बड़ा किया जाए कि वो घर संभाले, घर की इज्जत बचाए, जैसे, ठीक है। घर का मानो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, चलो, तो लोग क्या कहेंगे? लड़की भाग गई लड़की भाग गई। तो लड़की अकेली भागी क्या? नो नो। बॉय ने भगाया। हाँ, ठीक है, भगाया किसी ने, कोई किसी को नहीं भगाता, ठीक है, दोनों साथ मिलके भागे, ठीक है। बदनामी किसकी होगी? गर्ल गर्ल। बराबर, क्यों? क्योंकि क्यों वो गर्ल? गर्ल है। ठीक है, वही मैं कहती हूँ कि जो नीति नियम जो बनाए हैं ना एक ही चीज के, मैंने कहा ना, जैसे मैं अगर लड़का होती और मैं सर्जन होती तो लोग कहते हाँ सर्जन है, ठीक है। और मैं लड़की हूँ और सर्जन बनी तो लोग कहते लड़की होके सर्जरी करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। हाँ, तो मैं
मैं अपना काम जो है वो अच्छे से ही करती हूँ, ठीक है, पर जो रिकग्निशन और अप्रिशिएशन आपको सिर्फ लड़के होने की वजह से जो मिलता है वो लड़की होने की वजह से नहीं मिलता है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, हमें क्या होता है पता है, सब कुछ लड़के करना पड़ता है। चलो आपको मानो कहा, आपने कहा कि पिकनिक पे जाना है एक बार, अभी आप बोलो कि नहीं मुझे स्कूल में नहीं, ऐसे भी ट्रैकिंग ट्रिप जा रही है मुझे जाना है, ठीक है, आप एक बार घर पे बोल के बताओ, तुम देखना क्या तमाशा होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप जाओगी, कभी ऐसा भी होता है कि झुकना पड़ता है, घर वालों को जाना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा गायनेक लो, ये लो वो लो, क्यों सर्जरी करना है, ठीक है, पर फिर आपको अगर कन्विक्शन है कि मुझे आपको यही करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां पहले बहुत सीमित कैरियर चूज करती थी, पहले तो कैरियर ही नहीं चूज करती थी, फिर कोई सीमित कैरियर चूज करती थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में आने लगी। तो अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी बहुत साल रह चुकी है, ठीक है, अवकाश में भी जाके आए हैं, सुनीता विलियम्स गई, हमारे मतलब ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां नहीं जा पाई है। तो इससे हमें इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है कि नहीं, जैसे लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। काम के क्या कहते हैं कि एबिलिटी जो होती है ना वो हमें डेवलप करनी पड़ती है या सीखनी पड़ती है। कोई भी चीज होती है, मानो लिखना, पढ़ना, नाचना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, ये सब क्या है, स्किल्स है ना। स्किल्स तो हमें जो सिस्टम्स मिली है उसका उपयोग करके हमें डेवलप करनी होती है, बराबर ना। हम कोई सीख के तो नहीं आए, कुछ भी नहीं सीख के आए, है ना, सिवाय के बेसिक इंस्टिंक्ट, खाना पीना, रोना, मतलब यूरिन करना, पेशाब, मतलब जो बेसिक हमारी दैहिक क्रियाएं जो होती है, उसके सिवा हम क्या सीख के आए थे, कुछ भी नहीं। सब कुछ हमें सिखाया गया, ठीक है ना। तो हम कुछ भी सीख भी सकते हैं, पर वो सिखाने की हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, वो लड़कियों को कम दी जाती है और लड़कों को बहुत ज्यादा। जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। तो मानो ऐसे जो डेज जो डेवलप किए जाते हैं ना, वो हमें रिमाइंड कराता है कि इसमें कुछ काम करने की जरूरत है, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड मतलब दिन मनाया जाता है, वो सुन के हमें बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए। जो एक्सटिंक्ट होते हैं ना, बराबर, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ लोग करते हैं, है ना। तो ये गर्ल चाइल्ड की जो अहमियत है, उसकी जो वैल्यू है, वो बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो बड़ी है नहीं, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, बोलो, है कुछ आइडिया। सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स के लिए अवेयर होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, बेसिक राइट्स, मतलब हमारा अगर आप अपना हमारा संविधान भी अगर पढ़ते हो तो उसमें शुरू में जो आता है ना प्रीएम्बल, उसमें एक बेसिक राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स लिखा गया है, ठीक है, जिसमें हमें जीने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, इस तरह के सब अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, ठीक है। पर होता क्या है, ठीक है, मानो चलो समझो कि कोई बहुत गरीब परिवार है, हाँ, और दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, पढ़ाने के लिए अभी किसको भेजेंगे अगर एक का ही पैसा है, बराबर। तो ये आप जानते नहीं हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर आपने अनुभव है ना कि ऐसा ही होता है, बराबर ना। तो ये जो डेज मनाए जाते हैं, वैसे ही देखो, चलो ये पढ़ने के बारे में सोचो, फिर या आपके जैसे है, मानो चलो आप अभी पढ़े हो, आपके वेल टू डू फैमिली से हो, पैसे की बहुत प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप आपके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कहाँ तक आप बोलोगे चलो मुझे अभी सूरत में नहीं पढ़ना है, मुझे ऊटी जाके पढ़ना है, भेजेंगे, बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो एफर्ट्स कोई लड़के को लगाना पड़ता है ना कुछ करने के लिए, जो कुछ वो करना चाहता है, उसे कई ज्यादा लड़कियों को लगाना पड़ता है।
और मुझे बताओ, आपकी जो क्षमता होती है कुछ भी करने की वो लिमिटेड होती है सबकी। चलो मेरी इतनी क्षमता है, लड़कों की भी इतनी क्षमता है, ठीक है, उसको करने के लिए उत्साह दिया गया उसको, तो वो कितना लंबा जाएगा। मुझे ये करना है, ये कन्विंस करने में मेरी आधी शक्ति चली गई, तो मैं कितना जा पाऊंगी। थोड़ा समझ में आया जो डिफरेंस क्यों है। एक ही घर में, एक ही घर के बच्चे में एक ही पेरेंट्स होते हैं, वो जाने या अनजाने समाज के जो प्रेशर होते हैं, समाज जो चाहता है वो मोल्ड में ढलने के लिए पेरेंट्स कोई भी ऐसा करता है, ठीक है। ये जो डे है ना, उसका मकसद यही होता है कि लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में जागरूक करना और ऐसा वातावरण करना, समाज में ऐसा पैदा करना कि लड़कियों के भी हर सपने पूरे हो जाए, हाँ ना। तो उनके राइट जो होते हैं वो उसको मिले, राइट टू ऑफ मोबिलिटी। हमें कहीं भी जाना हो, हमें क्यों लोग हमारे, चलो माँ बाप भी गलत नहीं है, चलो क्यों उनको डर लगता है कहीं तुम्हें अकेले भेजने में, क्यों डर लगता है, किसका डर लगता है बोलो। पब्लिक का। हाँ, तो पब्लिक क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बोल, छेड़ेगी, यस ऐसा ही ना, Yes. है ना। तो पब्लिक में कौन है, बॉयज बॉयज। and girls. बॉयज हमारे घर में भी है कि नहीं है, है। है ना। तो जब हम लड़कों को, और वो कहीं बाहर से तो नहीं आए ना, कोई दूसरे ग्रह से आए हैं जो हमें छेड़ते हैं, वो भी नहीं ना। No. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ही घरों के बच्चे को हम ही कुछ ऐसा सिखाते हैं कि वो बाहर जाके कोई भी लड़की को सता सकते हैं। Hmm. कहीं ना कहीं तो वो भी किसी के बच्चे होंगे ना, Hmm. जो लड़कियों की छेड़ती करते हैं या उससे दुर्व्यवहार करते हैं, वो कहीं और से तो नहीं आए हैं ना, No. बराबर ना। तो हम जो हमारी परवरिश करते हैं उसी में जब हम ये डिफरेंसेस करते हैं ना, तो लड़कों को हम बहुत सारी सत्ताएं दे देते हैं, Hmm. मतलब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड। लड़का है ना तो वो बहादुर होगा, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई डांटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई उसको डिसिप्लिन नहीं करेगा, Hmm. उसमें कोई बुराई देखेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि लड़कियां जाके लड़कों का परेशान करती है, No. देखा बाहर रास्ते पे जाके सीटी मारती है, No. नहीं ना। तो क्यों ऐसा नहीं करती, उसको भी मन नहीं होता होगा, हाँ। तो जो गलत चीजें हैं वो गलत ही है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए है। तो समाज में जो लड़कियों के लिए भी जो डर का माहौल है, तकलीफ का माहौल है, या उनको जो मुसीबतें आती है घर से बाहर जाने में, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये जेंडरिंग में है, ठीक है। हम ऐसा लड़कों को बनाते हैं, जैसे हम लड़की को डरपोक बना देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, गिर जाएगी, ये होगा वो होगा, तो क्या होगा, हमारे दिल में डर ही बैठेगा ना, Hmm. ठीक है ना। हम हर मौके पे अगर हमें ना 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 बोला जाएगा तो हमें डर लगेगा कि नहीं, यस मैम। Yes. हाँ। तो ये डर का माहौल अपना समाज बनाता है, और वैसे ही लड़कों के दिमाग में राय घुसा देता है कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ भी गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कैसे है पता है, मेरा जो राइट है उसमें ऐसा भी आता है कि मैं किसी के राइट्स पे तराप नहीं लगाऊं, ठीक है। मैं तुम्हारा राइट छीन लूं ऐसा मुझे राइट नहीं है, बराबर ना। मुझे जो राइट्स है वो तुझे भी राइट्स है, तो हमें किसी एक दूसरे के राइट्स को खींच लेने की या उसको मार देने की, तोड़ देने की हमें कोई सत्ता नहीं है। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, तो किसी एक ग्रुप के जो राइट्स होते हैं वो दब जाते हैं और किसी के राइट्स बहुत बढ़ जाते हैं, Hmm. बराबर। तो इसलिए ये सब जो किया जाता है, ये डेज जो मनाया जाता है, मानो ये इंटरनेशनल और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इवन विमेंस डे है, फिर ऐसा भी है कि वायलेंस अगेंस्ट विमेंस डे होता है, ठीक है। Hmm. इसमें ही बहुत सारी हिंसा होती है, लड़कियों पर छेड़ती होती है, रेप होती है, मार दी जाती है, शादी ब्याह के बाद भी घर पे काफी डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना। मानो लड़का शादी पी के लड़की पे उसको मारे तो चलता है ना, आदमी अपना होता है वो किसी अपनी बीवी को मारता है तो लोग एक्सेप्ट करते हैं,
कि उसका आदमी है, उसको मारे तो उसमें क्या है? ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सब चला लेना चाहिए, नो मैम। No. है ना? तो इसलिए ये जो गर्ल चाइल्ड डे है ना, उसका पर्पस ये है कि अगर लड़कियों को बचपन से ही ऐसा मजबूत बनाया जाए, अपने जो राइट्स है उसके प्रति उनको बहुत ही जागरूक किया जाए, तो वो अपने राइट्स लेके रहेगी। लेके रहोगे कि नहीं? Hmm. यस मैम। है ना? पर उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जब हम ये मोल्ड में आ जाते हैं तो हमें कुछ उसमें गलत ही नहीं लगता। हमें सजा धजा जाए, बस सब बोले कि हाँ गुड़िया कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है ना? पर हमें ब्यूटीफुल तो है ही हम, हमें बहादुर भी बनना है ना? हमें दुनिया भर में काम भी करना है, हमें कहीं भी जाके कुछ भी कर सके ऐसी हिम्मतवान बनना है, हमें किसी से भी डरना नहीं है। तो वो सब जो बनाना है वो हमें ये गर्ल चाइल्ड डे बताता है। थैंक यू मैम, आपने जो मोटिवेशनल स्पीच दी उससे मैं बड़े बड़े सपने भी देखूंगी और उसे फुलफिल करने की स्ट्रेंथ भी रखूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Now I request our principal sir to felicitate ma'am.